Shrimad Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Shri Giriraj Govardhan Ki Brajbhumi Shri Vrindavan Dham Ki Navadvip Mayapur Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Maiya Jamuna Maiya Ki Shri Saryu Maiya Ki Tulsi Devi Vrinda Devi Ki Kalingapalam Shri Harinam Sankirtan Ki Ki Premadana Shri Harinam Sankirtan Ki Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama-shlokhe Bhaktir Bhavati Naistaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshururmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya-manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vande Aham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayati girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinatarinam Shri Chaitanyamishwaram Paramananda Madhavam. हरे कृष्णा। तो यहाँ
पर उपस्थित पुनः सभी भक्तगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज हम पुनः रामायण से कुछ प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से कुछ शिक्षाएं ग्रहण करेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं भारत के एक कोने में और आप लोग लंका में, और बीच में ये इंडियन ओशन, बहुत बड़ा गैप, सेतु बांधना पड़ेगा हमें, राम सेतु। तो एटलीस्ट लॉकडाउन से तो अब बेहतर ही है। लॉकडाउन में तो हम लेक्चर देते थे, सामने कोई रहता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं है उस और कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन वीडियो चालू करके बैठा है, कुछ अता पता नहीं था। तो ये तो काफ़ी बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन ऐसा लेडीज़ को प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। दे शुड नॉट फील वाई ओनली। सो ये कुछ कारणवश यहाँ पे ऐसा आयोजन किया गया है। कुछ क्षणों के लिए आपको मुझे सुनना है, लेकिन मेन अट्रैक्शन आज का, मेन आकर्षण, मुख्य आकर्षण आज का, जो बच्चे लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत से जो सुंदर नाटिका प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के ऊपर जो नाटिका, वो उन्होंने उसके ऊपर जो प्रैक्टिस किया है बहुत ही मेहनत करके, तो आज का वही मेन आकर्षण है। उसी कारणवश यहाँ पे उन्होंने वो जगह थोड़ी खाली रखी थी। क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि उनको ऐसा ना लगे कि अरे सीता मैया को भेज दिया था राम ने। आजकल यही पूरी रामायण में से लोग केवल एक ही चीज उठाते हैं और उसके ऊपर ही उनका खाली प्रश्नोत्तर रहता है, और उसके आगे और कुछ जीवन में तो प्रगति हो ही नहीं सकती उनकी। क्योंकि जहाँ पे वो लोग केवल खोट, त्रुटियाँ या गलतियाँ या कोई कारण ढूंढते रहते हैं। तो मैं बोला कि किसी को बुरा ना लगे, इसलिए पहले मैं खाली क्लैरिफाई कर दूँ। तो कल के सत्र में हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से मुख्य रूप से किस तरह हमारे जीवन में भी हम प्रेममय निस्वार्थ संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ चर्चा की थी। और रामायण तो हमने अनेकों बार सुनी है, अनेकों बार हमने शायद नाटिका भी देखी होंगी, कोई पिक्चर भी देखे होंगे। रामायण बदलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में जैसे बतलाया गया है कि भगवान ने राम सेतु बांधा था, लेकिन अगली बार प्रभु श्री राम हेलीकॉप्टर में आके लंका पे चढ़ाई करेंगे और रावण का वध करेंगे। वही राम रहेंगे, वही सीता, वही लक्ष्मण, वही कहानी रहेगी। लेकिन कहानी में कोई अलग से ट्विस्ट, टर्न, मोड नहीं है आने वाला। लेकिन वही कहानी आने वाले अनेकों हजारों वर्ष तक सभी जनता को प्रेरणा देती रहेगी। तो आप सबने रामायण तो बहुत बार सुनी है और हम जानते हैं कि किस तरह प्रभु श्री राम हमें हमारी जीवन शैली हमें कैसे जीनी है वो बतला रहे हैं। तो सबसे पहली शिक्षा आज हम रामायण से ये सीखेंगे कि किस तरह
राम जी हमें ये सिखा रहे हैं कि जीवन में आई हुई कठिनाइयों को हमें किस तरह गरिमा से और शान से झेलना है। कठिनाइयों को हम रोक नहीं सकते, हम उससे भाग भी नहीं सकते, सामना तो करना ही है। किस तरह दूसरों के ऊपर दोषारोप, किस तरह दूसरों के ऊपर आरोप न लगाकर या किसी को दोषी न ठहराते हुए खुद अपने जीवन में अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना, वो एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रभु श्री राम हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। यदि मैं बारामती से जा रहा हूँ बम्बई की ओर, और बारामती से बम्बई के बीच का जो रास्ता है, हाईवे है, वो अगर हाईवे एकदम स्मूथ 4 लेन हाईवे बनाया हुआ है और वो हाईवे में कहीं पे भी आपको एक कंकड़ पत्थर नहीं मिलेगा, हाईवे में आपको कहीं पे एक बम्प भी नहीं मिलेगा, स्पीड ब्रेकर भी नहीं मिलेगा, खड्डे की तो दूर की बात। और अगर आपने वो रास्ता ऑलरेडी नाप लिया है, जा चुके हैं, तो आपको मालूम है कहीं पे भी आपको ऐसे बीच में अड़चन नहीं आएगी। तो जब आप बारामती से बॉम्बे जा रहे हैं और रास्ता एकदम स्मूथ है, कहीं पे भी रुकावट, कहीं पे भी ऊपर नीचे बम्पी या ऐसा कुछ आपको अनुभव नहीं हुआ, तो दूसरी बार भी जब आप जाएंगे तो आपको वो बात की खातरी है कि यहाँ पे मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वही रास्ते से जा रहे हो और अचानक अनपेक्षित एक बड़ा सा खड्डा आ जाए, क्योंकि आप तो वही सोच से जा रहे हैं कि आगे मुझे कोई अड़चन नहीं आने वाली, रोड भी बहुत अच्छा है और मैं 80, 100, 120 की स्पीड पे चला सकता हूं गाड़ी, लेकिन अचानक वो एक स्पीड ब्रेकर या खड्डा या रुकावट आ जाए तो हमें बहुत अधिक झटका लगता है कि नहीं। यदि मुझे मालूम है कि पूरा रास्ता ही ऐसा है, खराब है, तो मैं सचेत होकर गाड़ी चलाऊंगा। मुझे मालूम है बार बार स्पीड ब्रेकर्स आने वाले हैं, तो मैं बार बार अपना ध्यान भी रखूंगा और ब्रेक के ऊपर भी अपना पैर लगाए रखूंगा। लेकिन जब हमें इस बात का पता है कि आगे सब कुछ स्मूथ है, लेकिन तभी उस समय रुकावट आ जाए या हमारी गाड़ी हड़बड़ा जाए, तभी उस समय हमें ऐसा अचानक जो झटका लगता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा मैंने देखा भी नहीं था, ऐसा मैंने कभी अपेक्षित भी नहीं किया था, लेकिन ये क्या हो गया। रामायण भी भगवान के चरित्र के माध्यम से ऐसा एक टर्न लेता है कहानी में, हम जानते हैं, आप सब समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। यदि आप किसी से प्रेम करें और सामने वाला भी आपसे कई गुना अधिक प्रेम करता हो और आपके निजी संबंध इतने गाढ़े हो, इतने गहरे हो कि वास्तविकता में आप जब उस व्यक्ति के समक्ष जाते हो तो वो व्यक्ति केवल आपकी सेवा करना चाहता है,
और उस समय उस परिस्थिति में यदि आप उस व्यक्ति के पास जाएं और वो व्यक्ति आपको प्रेम करने के बदले में एक जोर से तमाचा लगाए, वो आपको अधिक दर्द देगा। तमाचा ना लगाए, आपके पीछे आपके ऊपर वार करे, तो आपको कैसा प्रतीत होगा? यदि मैं जानता हूं कि मैं जिसको मिलने जा रहा हूं उसका मेरे साथ कोई अच्छा संबंध नहीं है, तो मैं भी सचेत होके जाऊंगा, मैं भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो उसे उत्तेजित करे। लेकिन मैं जब उस व्यक्ति के पास जाता हूं जो मुझसे कई गुना अधिक मुझे प्रेम करता है, और वो व्यक्ति अचानक रूप से उसका वर्तन बदल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए, उसके शब्दों में कड़वापन आ जाए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे ये क्या हो गया? और यहां पे प्रभु श्री राम के साथ ऐसा ही कुछ हो गया कि प्रभु श्री राम जब कैकेयी के पास गए, जो स्त्री अपने पुत्र से भी अधिक प्रभु श्री राम को प्रेम करती थी, और प्रभु श्री राम भी कौशल्या से अधिक कैकेयी को प्रेम करते थे, उनके बीच का जो संबंध था वो हम आज की दुनिया में हम देख भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिस तरह कैकेयी ने व्यवहार किया भगवान के साथ, भगवान हमें ये सिखाना चाहते हैं कि इस जगत में या इस जगत में कोई भी चीज निश्चित नहीं है। परिस्थितियां बदल जाएंगी, लोगों के विचारधाराएं बदल जाएंगे, लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे कल तक तो सब ठीक था, आज क्या हो गया? तीन लेवल है, तीन स्तर है। एक स्तर कि जहां पे आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अपेक्षा करें कि मैं जाऊंगा मिलूंगा तो प्रॉब्लम ही केवल मुझे प्रॉब्लम ही आने वाला है, तकलीफ ही आने वाली है। तो ये पहला स्तर है, ये अपेक्षित है। मैं उसके साथ बातचीत करूंगा तो वहां पे वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा मैं जानता हूं। वो एक स्तर हो गया। दूसरा स्तर ये हो गया कि एक नॉर्मल व्यवहार किसी के साथ हो रहा है। तो मैं जब सामने वाले के साथ आदान प्रदान करने जाता हूं या बातचीत करने जाता हूं तो मुझे मालूम है कि न्यूट्रल पार्टी है, जितना काम है उतना काम करके चलो निकलो। लेकिन तीसरा स्तर यह है कि मैं प्रेम की अपेक्षा, एक तो प्रॉब्लम, दूसरा नॉर्मल बिहेवियर, और तीसरा मैं सामने वाले से ये अपेक्षित करूं कि मुझे वो प्रेम देगा या देगी। लेकिन वहां पे जब ठीक से हम किसी का आचार व्यवहार ना देखें तो वो हमें और ठेस पहुंचाती है। जब हमें मालूम है कि ये संबंध ज़्यादा कुछ गहराई का नहीं है, तो वहाँ पे हमें सामने वाला बोल देगा तो हमें ऐसा कुछ लगेगा भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम था उसका व्यवहार ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, ऐसा लगा कि कैकेयी को लगा कि मेरे शब्द राम को चौंका देंगे। लेकिन राम के व्यवहार ने कैकेयी को चौंका दिया, क्योंकि कैकेयी ने भी अपेक्षा नहीं की थी कि जिसके साथ, जिसको मैं ऐसा भला बुरा कह दूंगी, शाप दे दूंगी, वो व्यक्ति
जब प्रभु श्री राम ने कैके के वो वचन सुने कि तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास में जाना है और भरत का राज्य अभिषेक होगा, प्रभु श्री राम की प्रतिक्रिया क्या थी वो समझने जैसी है। तो प्रभु श्री राम हमें कठिनाइयों का सामना कैसे शान से करना है, गरिमा से करना है, वो सिखला रहे हैं। दूसरा क्या सिखला रहे हैं कि इस जगत में कोई भी चीज निश्चित नहीं है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दैट्स व्हाट। अनअपेक्षित की अपेक्षा कीजिए। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रभु श्री राम हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने केवल कैके से कहा कि बस इतनी सी बात। मैं तो सोच रहा था कि मैं तो आपके पुत्र जैसा हूं और मेरा तो प्रेम आपसे इतना, मेरा तो संबंध इतना गहरा है कि मैं तो ये सोच रहा था कि यदि आपको कुछ कहना है तो आप स्वयं चल के मुझे कह देते। इसके लिए पिताश्री को इतनी तकलीफ देने की क्या आवश्यकता थी? इतनी छोटी सी बात के लिए, बाय द वे ये छोटी सी बात नहीं थी। सोचिए, जो व्यक्ति का हक बनता हो राजगद्दी पे बैठने का, सोचिए वो व्यक्ति, चलो हक तो बनता है लेकिन क्या वो समर्थ है? राजगद्दी पे बैठने का हक भी बनता है, समर्थ भी है। उतना ही नहीं, सभी भाइयों में सबसे बड़े हैं और साथ साथ में जनता भी वही चाहती है। फिर भी पूर्ण रूप से क्वालिफाइड होने के बावजूद भी यदि किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो तो भगवान यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि यदि उनके साथ ऐसा हो सकता है तो मैं और आप किस खेत की मूली है? चेंज, परिवर्तन, यही वही एक चीज है जो कांस्टेंट है। चेंज इज द कांस्टेंट थिंग दैट कीप्स चेंजिंग। तो और सबसे बड़ी बात तो ये कि यदि आप मासूम है, यदि आप बेकसूर है, और मासूम और बेकसूर होने के बावजूद भी भरी सभा में आपका अपमान किया जाए, क्योंकि ये बात तो कल उठ के पूरी प्रजा को मालूम पड़नी थी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ है। और यदि आपको, जो आप बेकसूर हो, आपके साथ आपको मालूम है अन्याय हुआ है, यदि आपको ही सभी कारणों का कारण समझा जाए, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम, लेकिन सभी प्रॉब्लम की जड़ आप ही हो। कैके ने क्या सोचा, मंत्रा ने क्या सोचा, राम ही सभी प्रॉब्लम की जड़ है, उनको यहां से निकाल दिया ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा ठीक। आप बेकसूर हो, आपके साथ अन्याय हुआ है और साथ साथ में आपको ये कहा जाए इनडायरेक्टली कि आप ही सभी कारणों की जड़ हो, सभी प्रॉब्लम के कारण केवल आप ही है, क्या आप चुप बैठेंगे? और आगे चल के यदि भरी सभा में ऐलान किया जाए कि इनको हम दंडित करने वाले हैं, मासूम है, अन्याय हुआ है और ऊपर से आपका अपमान हुआ,
अपमान होने के बावजूद, अपमान होने के बाद आपको अभी दंडित किया जाने वाला है। यदि यदि दशरथ महाराज ने प्रभु राम को कह दिया होता कि आपको हम बंदी बना लेंगे, आपको हम कैद में बंद करके रख देंगे, तो वो भी एक प्रकार से भले ही अन्याय ही था, लेकिन वो उतना अन्याय नहीं था जितना कि उनको 14 वर्ष तक वनवास में भेजने की बात आई। प्रभु को कह देते आपको 14 वर्ष तक कैद में बंद करके रख देंगे। यदि कोई कैदी होता है, कैदी को भी यदि आप कैद में बंद करके रख दे, एटलीस्ट वो कैदी को 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, सामने से आएगी। वो कैदी एक छत के नीचे सुरक्षित तो है, उसके पास आश्रय तो है। हाँ, शायद कुछ वर्ष तक एक ही जगह पे पड़ा रहेगा। सॉरी। और वो कैदी को भी मालूम है कि मुझे अपनी खुद की सुरक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ही मेरी सुरक्षा करेगी। तो एक प्रकार से कैदी का जीवन भी एक बहुत बड़ा दंड है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को जिस तरह से दंडित किया गया, जिस तरह से अपमानित किया गया, वो एक बहुत बड़े चोर, गुंडे या बहुत बड़ा एक खूनी होता है, मर्डरर होता है, उसको भी शायद उम्र कैद दी जाएगी, लेकिन उसको बंद करके रखेंगे। यहाँ पे प्रभु श्री राम के ऊपर एक प्रकार से इतना बड़ा अत्याचार हुआ कि उनको कह दिया तुम देख लो अपना जीवन, कहाँ रहेंगे तुम देख लो, क्या खाएंगे आपके ऊपर, कहाँ जाऊं मैं, ये अंबर ही आपका छत है। सोचिए, यहां तक आपके सामने कोई खाना दे दे और आप खाने जाने ही वाले हो कि वो खाना आपसे छीन लिया जाए, उससे अच्छा तो नहीं देते खाना। लेकिन आपको एक कैरेट दिखाया जाए, अरे आपको लोकसभा में एमपी बनाया जाएगा, आपके साथ आपको विधानसभा का राज्य अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, उसकी अपेक्षा कितनी बढ़ जाती है। लेकिन उससे एक छोटे इलाके का आमदार खासदार भी नहीं बनाया गया, वो तो उधर ही गिर जाएगा, टूट जाएगा। पीछे आप लोग सबको सुनाई दे रहा है? मतलब नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है आप सबको? ओके। तो प्रभु श्री राम के प्रति एक प्रकार से यदि हम गहराई में सोचने जाए तो उनके प्रति जो अन्याय हुआ, ऐसा अन्याय यदि मेरे आपके साथ होगा, सब जगह पर मैनेजमेंट करना पड़ता है, घर पे मैनेजमेंट करना पड़ता है, मंदिर में आएंगे तो मंदिर में मैनेजमेंट करना पड़ता है, इस पूरे बारामती शहर को चलाने के लिए एक व्यवस्थापक या व्यवस्थापन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में उतार चढ़ाव तो आने ही वाले हैं, लेकिन किस तरह से यदि कल उठ के हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। कल हम लोग सुन रहे थे
सर्विसेज रोटेशन में चलती है यहाँ पे। हमारे राधा गोपीनाथ में भी कोई डिपार्टमेंट्स, इतने सारे डिपार्टमेंट चलते हैं, तो 3 साल से अधिक आप उस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा नहीं कि आपको दिया और आपसे कुछ छीना जा रहा है, नहीं, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह इस जगत में भी आपके साथ जब ऐसी अनिश्चित परिस्थिति आके खड़ी हो जाए, उसको कैसे झेलना है। तो ये इतना आसान नहीं है हम जितना बोल रहे हैं, इसको पचा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु श्री राम को रोकने का कई लोगों ने प्रयास किया। मैं तो संक्षिप्त में बता रहा हूँ, समय की पाबंदी, समय का अभाव होने के कारण कई लोगों को प्रभु श्री राम को रोकने का प्रयास किया। लेकिन प्रभु श्री राम ने अंततोगत्वा 4 कारण दिए क्यों मुझे वन में जाना ही है। पूरी प्रजा ने प्रभु को रोकने का प्रयास किया, कौशल्या ने रोकने का प्रयास किया, लक्ष्मण ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन दशरथ के जितने भी मंत्रीगण थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया। लेकिन प्रभु श्री राम ने 4 कारण दिए। पहला कारण, प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे ऐसा अवसर कदापि नहीं मिलेगा जब मैं मेरी मां कैकेयी को इससे अधिक प्रसन्न कर सकूं। That was the first reason. ये जो अवसर प्रदान हुआ है, ये मुझे वापिस ऐसा लाभ कभी नहीं मिलेगा। दूसरा कारण प्रभु श्री राम बता रहे हैं, ऐसा अवसर कि मैं पूरी दुनिया को दिखा सकूं कि मेरे पिताजी कितने महान हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि मेरे पिताजी ने रघुकुल की इस रीति रिवाज को बनाए रखने के लिए अपने एक पुत्र को भेज दिया। इसमें मेरे पिता का बड़प्पन दिखाई देगा कि मेरे पिता ने उनके हृदय के टुकड़े को वन में भेज दिया। एक राजा होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने वचनों पर अड़ग रहे। और यहाँ पे ऐसा अवसर मुझे कब प्राप्त होगा कि मैं मेरे पिताजी के नाम को और रोशन कर सकूं। तीसरा कारण प्रभु श्री राम बता रहे हैं, ऐसा अवसर मुझे कदापि प्राप्त नहीं होगा कि मैं मेरे छोटे भाई भरत की सेवा कर सकूं। भरत को राजगद्दी पे बैठकर मुझे जितना आनंद होगा उतना किसी को नहीं होगा। कौन सा भाई आज की तारीख में ऐसा सोचेगा? या कौन सा नेता अपनी सीट, अपनी कुर्सी सामने वाले क्या बोलते, अवैष्णव। और यही भागवत का संदेश है। जब परीक्षित महाराज के ऊपर उस श्रृंगी नामक बालक ने श्राप छोड़ दिया कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी,
परीक्षित महाराज ने उस परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखा? वो चाहते तो उस श्राप को काउंटरैक्ट कर सकते थे, उनके पास उतनी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस दिशा में न सोचकर अपने मन में नकारात्मक विचार को न लाकर किस तरह मैं भक्ति में भगवान के निकट जाऊंगा, इस बात पर गौर दिया। व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभिक्ष्णश निर्वेद मूलो द्विजशापरूपो। वो कह रहे हैं कि प्रभु ये तो आपकी बड़ी अनुकंपा है, आपकी बड़ी कृपा है कि आप मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं इस भौतिकता के चंगुल में जिस तरह से फंसा हूं, शायद कदापि निकल नहीं पाऊंगा अपने आप, लेकिन ये आपकी कृपा है कि आप मुझे एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि किस तरह अपने आप को मैं इसमें से आसानी से बाहर निकाल सकूं। भागवतम के अनेकों अनेक चरित्र में हम यही संदेश और यही चेतना देखते हैं। तो प्रभु श्री राम भी हमें यहाँ पे एक सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी इवन इन द केस ऑफ एडवर्सिटी। तकलीफों में भी तक को ढूंढना, ये एक सच्चे भक्त की निशानी है। और कई बार यदि हमारे साथ ठीक है, और आगे बढ़ के जब भरत के साथ माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा जब सब वन में गए, चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट पहुंचने के बाद प्रभु श्री राम ने जब 3 माताओं के दर्शन किए, प्रभु श्री राम उठकर दौड़े दौड़े चले आए। और कौशल्या सबसे बड़ी है, सुमित्रा उनका मझला दूसरा नंबर है, और कैकेयी तो सबसे छोटी रानी थी। तो एक प्रकार से देखने जाए तो जो एटिकेट है, सदाचार की दृष्टिकोण से देखने जाए तो प्रभु श्री राम को पहले अपनी माता को जाके प्रणाम करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ी है, ज्येष्ठ है। लेकिन प्रभु श्री राम ने उठकर दौड़कर पहले कैकेयी को प्रणाम किया। जिन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया हो हमारे साथ, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी उस व्यक्ति के प्रति? ये डिसाइड करता है क्या हम सही रूप में भक्त हैं या अभक्त है। प्रभु श्री राम को केवल एक चीज करना था, कैकेयी को पाठ सिखाने के लिए। कौशल्या को मिलना था, सुमित्रा को मिलना था, कैकेयी को दुर्लक्ष्य कर देना था। If he would have just neglected her, that neglect itself was enough. कई बार यदि हमारे निजी लोग हमें दुर्लक्ष्य कर दे या हमें अनदेखा कर दे, तो वो निग्लेक्ट हमें अंदर ही अंदर खाने लगता है। मैंने कुछ गलती कर दी। कैकेयी को तो इतना बड़ा पश्चाताप हो ही गया था, वो पश्चाताप कर रही थी, अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। प्रभु श्री राम ने कैकेयी को अपनी की गई गलती का एहसास तक नहीं कराने दिया कि तुम गलत हो। यदि हमारे साथ कोई गलत करे, जीवन भर समय मिलेगा ना, उसको हम सुना देंगे 2 बार, छोड़ेंगे नहीं। वो बदले की आग में हम ही जलते रहते हैं। अरे तुमने मेरे को ऐसा कहा, ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम होते कौन हो? तुम जानते नहीं क्या मैं कौन हूं?
मेरी कितनी पहचान है साहिब के साथ। दिखा दूंगा मैं भी अपने आप को। प्रभु श्री राम को कुछ नहीं करना था, केवल कैकई को दुर्लक्ष्य उसके सामने देखना तक नहीं था बस। लेकिन प्रभु श्री राम की प्रतिक्रिया, यही तो वैष्णव संबंध का गूढ़ मर्म है जो प्रभु हमें खुद सिखला रहे हैं। लर्निंग टू फॉरगिव इज एक्चुअली अ हार्ट ऑफ अ वैष्णव। किस तरह क्षमा जो है वो एक वैष्णव का बहुत बड़ा आभूषण है। लेट गो। हम लोग यहीं पे सब कुछ बांध कर रखते हैं, जमा करके रखते हैं। एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर छोड़ दो, ये मोबाइल है। मोबाइल में आप देखेंगे कि बैटरी होती है ना 100%। सुबह चार्ज करते हैं 2 घंटे में, 3 घंटे में आप देखते हैं अरे बैटरी इतनी कम जल्दी क्यों खा रहे हैं, ये मोबाइल इतना बैटरी क्यों जल्दी खा रहा है। मैंने तो इतना कुछ बात नहीं किया फोन पे, ना ही मुझे कोई इतने कॉल्स आए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये मोबाइल में बैटरी धीरे धीरे कम हो रही है। फिर मुझे कोई बताता है अरे इसमें पीछे बहुत सारे ऐप्स है जो चालू है, चल रहे हैं, पहले उसको निकालो बाहर। कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है, क्यों? बहुत सारे प्रोग्राम्स पीछे चल रहे हैं। उस प्रोग्राम को जब तक डिलीट नहीं करेंगे, बाहर निकालेंगे नहीं, तो वो हैंग हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। उसी तरह हमारी भी हमारे दिमाग में भी वो पिछले कितने वर्षों तक वो खुन्नस की, बदले की भावना हम लेके बैठते हैं, वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। क्या करता है? हमारी ही ऊर्जा को खा जाता है। हम शायद बाहरी दृष्टिकोण से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन चेतना में कोई प्रगति नहीं हो रही। तो हमें भी उसी तरह लेट गो करना है, उन सभी पुराने ऐप्स को, पुराने प्रोग्राम्स को बाहर। आप समझ रहे हैं शायद, यू ऑल कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। क्षमा कीजिए, ना मुझे हिंदी ठीक से आती है, ना मराठी तो आती नहीं है, थोड़ा इधर उधर जोड़ देता हूँ बस। उसके लिए तो मतलब वास्तविक रूप में मैं इधर बैठने के पात्र ही नहीं हूँ। रामायण, भगवान श्री राम की स्तुति करनी कोई ऐरा गैरा व्यक्ति थोड़ी कुछ कर सकता है। तो जब तक उस वो प्रोग्राम्स को हम दूर नहीं हटाएंगे, तब तक वो हमारी अंदर ही अंदर और दिमाग इतना फास्ट चलता रहेगा, लेकिन भक्ति में हम कार्यशील नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक शिक्षा, बहुत बड़ी शिक्षा हमें यहाँ पे भगवान प्रभु श्री यहाँ पे दे रहे हैं कि हमारे अंदर वो रिसेंटमेंट को क्या कहते हैं एक प्रकार से, चिड़ दूसरों के प्रति एक वैरी भावना या द्वेष या बुरा सोचना, उसमें सामने वाले का बुरा तो होने वाला है नहीं, हमारा ही बुरा हो रहा है। तो प्रभु श्री राम की एक छोटे से एक किस्से में से प्रभु श्री राम हमें क्या क्या नहीं सिखा रहे हैं। हम लोग ने ये भी जीवन में उतार लिया ना, तो कितनी प्रगति कर लेंगे। तो और प्रभु श्री राम के साथ अन्याय हुआ,
लेकिन प्रभु श्री राम ने किसी को दोषी नहीं ठहराया। यही तो हमने यहाँ से तो शुरुआत की थी, किस तरह खुद के कर्मों का जो फल है उसका उत्तरदायित्व हमको लेना है। और प्रभु श्री राम के साथ जितनी नाइंसाफी हुई, उतनी नाइंसाफी भरत के साथ भी हुई, एक प्रकार से देखने जाए तो। क्योंकि भरत को 1, 2, 3 लोगों ने नहीं, सभी ने गलत समझा। सोचिए, आपने कोई मिस्टेक की नहीं है, आपने कोई गलती की नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपको गलत समझ बैठे और लोग आपके ऊपर दोषारोपण करें। भरत ने ये नहीं सोचा कौन मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, कौन मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। हम कई बार उसमें ही अटक जाते हैं। ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन दिमाग में अगर वो एक बार वो चालू हो जाता है ना मशीन घूमना, फिर उधर ही घूमता रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। भरत ने सोचा ही नहीं, भरत ने एक ही चीज सोची, लोग चाहे मेरे बारे में भला बुरा जो भी कहे, मेरा एक ही लक्ष्य है, प्रभु श्री राम को मैं कैसे प्रसन्न करूं। तो सेवा करते करते भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे दिन आएंगे जहां पे एक प्रकार से हमने कोई गलती नहीं की होगी या हमें गलत रूप से परखा जाएगा, देखा जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन सही असली परीक्षा वो नहीं है कि मैं साबित करके दिखाऊं कि मैं गलत नहीं हूं, सही हूं। असली परीक्षा ये है कि मैं भगवान श्री राम की सेवा में किस तरह दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता चला जाऊं। भरत को कैकेयी ने गलत समझ लिया, कौशल्या ने गलत समझा, लक्ष्मण, वहां तक कि वशिष्ठ, वहां तक कि भारद्वाज ऋषि, वहां तक कि वो गुहा जो एक भील जात का एक वहां के राजा थे जंगल में, सभी ने भरत के ऊपर ऐसा दृष्टिपात किया जैसे भरत ही गुनहगार है। और भरत तो बेचारा वहां पे बैठा है, उसको तो इस बात की कोई भनक भी नहीं है कि क्या हो रहा है अयोध्या में। और अचानक आने के बाद पूरी प्रजा इस ऐसी वो मुचुकुंद की तरह आंख खुली कि वो भस्मीभूत, कौन था वो, कालयवन, वो आंख में ऐसे अंगारे थे, ऐसी अग्नि थी कि आंख खुलते ही वो कालयवन भस्मीभूत हो गया। तो कई बार हमारे सामने भी कई लोग हमको इस तरह से देखते हैं, हमको लगेगा अरे बाप रे, जला देंगे मेरे को अभी। हाँ, ये एक चीज है, आप समझ लेना। कई बार हमको लगता है कि मेरी गलती है ही नहीं, लेकिन हमारी गलती भी हो सकती है। हम तो अपने आप को सदैव मासूम ही समझते हैं, अरे मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। वो तो लोगों का नजरिया है कि वो मुझे गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं। नहीं, हमारे पास उतनी नम्रता भी होनी चाहिए कि मैं अंदर झांक के देखूं कि हाँ, मैं भी एक बद्ध जीव हूं और मेरे से भी गलती हो सकती है। और कई बार सामने वाला व्यक्ति हमें सुधारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमको लगता है अरे मुझे क्यों बताया जा रहा है,
मैं तो एक अच्छा भक्त हूं। लेकिन हमें कदापि ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से गलती हो ही नहीं सकती है, वो सब उनकी गलती है कि मुझे गलत समझ रहे हैं। प्रभु श्री राम हमें और एक सुंदर शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे। इस जगत में कोई भी व्यक्ति हो, भला भला अच्छा व्यक्ति भी होगा ना। ये मत सोच लेना कि पूरा जगत मुझे प्रेम करेगा, ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। एवरीवन शुड लव मी। आप कोई भी क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो शायद आपसे द्वेष करेंगे, आप प्रेम तो नहीं करेंगे लेकिन आपके बारे में भला बुरा बहुत कह देंगे। तो ये अपेक्षा मत रखना कि आप जिनके साथ जीवन बिताएंगे वो व्यक्ति आपको भला बुरा नहीं कहेगा, या वो व्यक्ति आपको गलत नहीं समझे, गलत समझ सकता ही नहीं है, क्योंकि मैं गलत हूं ही नहीं। हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से अच्छा और कौन हो सकता है। लेकिन उनके कृष्ण के अपने ही संबंधी जो भाई थे, मामा का लड़का था, हाँ, शिशुपाल। सोचिए कितना भला क्या कहते हैं, भला बुरा कहा। भगवान में 64 गुण है, एक भी गुण सामने दिखाई नहीं दिया। तो अगर हमारी ये गलत धारणा और गलत अपेक्षा है तो हम अधिक से अधिक फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जीवन में, ये समझ के कि सब लोग मुझसे प्रेम करने चाहिए। नहीं, डोंट बी इन दिस फॉल्स इल्यूजन। बारामती में आम मिलते हैं, आम। बारामती के आम बहुत सस्ते होते हैं, नहीं? हाँ, महाग असते, खूप जास्त महाग है। बाहर से आते हैं तो और महंगे होंगे, नहीं? बारामती में नहीं उगते आम, ज्यादा नहीं होते। यहां पे किसको आम पसंद है? हाथ खड़ा कीजिए। प्रैक्टिकली सभी। क्यों पसंद है? एक कारण दीजिए बस। खूप महाग असते म्हणून? स्वीट। आम जैसी मधुरता और कोई फल में शायद आपको चखने नहीं मिलेगी। तो आम जैसा फल जिसमें इतनी मधुरता है और अधिकांश लोग इस बात को स्वीकारते हैं, है कि नहीं? हाँ, कभी कभी खट्टा भी निकलता है, लेकिन अधिकांशतया ये अपेक्षा होती है कि आम मीठा ही निकलेगा। अधिकांश लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आम सभी फ्रूट्स में, सभी फलों में का राजा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो आम से नफरत करते हैं। वो आम की जो सुगंध आती है ना, सुगंध, वो सुगंध नाक में जाते ही उनको उल्टी हो जाती है।
अब आप और मैं सोचेंगे अरे अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? एवढं महाग आणि एवढं मधुर स्वाद असल्यामुळे पण तुम्ही असं कसं सांगू शकता? तुम्हाला आवडत नाही? लेकिन वो भी एक हकीकत है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो इतना मधुर आम, इतना महंगा आम होने के बावजूद भी बस नहीं चाहते। बस समझ लीजिए इस दुनिया में भले आप भी उस आम के समान हो, लेकिन कोई ना कोई तो रहेगा वो आपकी मधुरता को भी कड़वा समझ बैठेगा। और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको आम पसंद नहीं है लेकिन कड़वा करेला पसंद है। आप कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति का वो स्वभाव है कि उसको वही चीज पसंद है। यू कैन नॉट चेंज पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यू कैन नॉट चेंज पीपल्स नेचर, यू कैन नॉट चेंज पीपल्स इमोशन, यू हैव नो कंट्रोल। कौन आपको पसंद करेगा, कौन आपको पसंद नहीं करेगा। लेकिन ये अपेक्षा लगाए बैठेंगे कि सब लोग मुझे अच्छा समझना ही चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं, प्रभु श्री राम हमें ये सिखा रहा है कि ये गलत धारणा में मत रहना। कृष्ण हमें ये सिखा रहा है, उनसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन पुरुषों में उत्तम तो है ही। लेकिन सर्वोत्तम होने के बावजूद सोचिए मेरे में और आप में कितनी खामियां हैं, कितनी त्रुटियां हैं, फिर भी हम सोचते हैं अरे ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, मुझे समझ नहीं पाया, मेरे भावनाओं को समझ नहीं पाया। अगर आप ये सोच रहे कि सब समझेंगे, ये भूल जाइए। Your happiness should not depend on who likes you, who doesn't like you. आपके जीवन का सुख और चैन इस बात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि कौन मुझसे अधिक प्रेम करता है या कौन मुझसे नफरत करता है। जिस तरह भरत को कई लोगों ने गलत समझ लिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने गलत कभी नहीं समझा। भरत जब प्रभु श्री राम को मिलने चित्रकूट जा रहे थे, मैं ऐसे ही बीच में से स्टोरी उठा रहा हूं ताकि वो शिक्षाओं से मिली जुली है। तो भरत जब जा रहे थे चित्रकूट, तो भरद्वाज जी का आश्रम पे रुके थे, जहां पे प्रभु श्री राम भी रुके थे, और वहीं से गंगा पार की थी उन्होंने दूसरे दिन। तो भरद्वाज जी के आश्रम में जब भरद्वाज जी को मिले, तब भरद्वाज ऋषि ने भी भरत को राजन करके पुकारा कि अभी तो आप ही राजा है। एक प्रकार से सार्केस्टिक, एक व्यंग कहते हैं सार्केज्म को, उपरोध, एक सार्केस्टिकली कह दिया कि राजन तुम कैसे हो। भरत ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, क्या मेरे राम मुझे माफ कर देंगे? भरद्वाज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। भरद्वाज जी ने कहा कि तुम्हें इस बात का कोई पता नहीं कि प्रभु श्री राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा जब प्रभु श्री राम यहाँ पे थे और जब यहाँ से प्रस्थान करने ही वाले थे, उन्होंने पुरोहित को बुलाया और स्वस्ति वाचन किया गंगा पार करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ से आगे वन में प्रवेश करेंगे।
तो स्वस्ति वाचन करने के लिए जब पुरोहित को बुलाया, पुरोहित स्वस्ति वाचन कर रहा था, और स्वस्ति वाचन करते करते ये जब 2 शब्द पुरोहित के मुख से निकल गए, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, प्रभु श्री राम के हाथ से थाली गिर गई और प्रभु श्री राम वहीं पे गिड़गिड़ाकर रोने लगे। तो भरत, अब तुम सोच सकते हो कि प्रभु श्री राम आपको कितना प्रेम करते हैं। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि प्रभु श्री राम आपको माफ कर देंगे। तो भरत ने ये नहीं सोचा मुझे कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे आपकी यदि खुद की चैनल है, आपने खुद सोशल मीडिया पे आपका कोई प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप सोचते हैं कि मेरी खुशी किसके ऊपर निर्भर करती है, कितने लोग मेरे पोस्ट को लाइक करते हैं, कितने लोगों ने मेरी स्तुति की, वाह की, मुझे कितने व्यूज प्राप्त हुए। वी डिटरमाइन आवर हैप्पीनेस बेस्ड ऑन दैट। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये दुनिया तो डबल ढोल की है। आज ये ऐसा बोलेगी, कल कुछ और बोलेगी। तो भरत ने पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ज्यादा जोर दिया ही नहीं। आदमी इतना डिप्रेस हो जाता है आज की तारीख में, यदि किसी ने डिसलाइक दे दिया, यदि किसी ने नेगेटिव कमेंट दे दिया, और डिप्रेशन में चला जाता है, भक्ति छूट जाती है हमारी। भरत ने अपनी भक्ति को और तीव्र बना दिया, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर जोर नहीं दिया। तो ये अच्छे से अच्छा फल को भी लोग ठुकरा देते हैं। तो अच्छे लोग, साधु, कितने लोग साधु को आदर देते हैं, लेकिन यदि साधु सोचेगा कि अरे कोई देखता तक नहीं मेरे सामने, कोई सुनता तक नहीं मेरी, एक प्रकार से साधु का जो सन्यासी का जीवन है वो बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि आप भगवान के ऊपर इतना निर्भर हो, शरणागत हो, कि नम्रता पूर्वक जानबूझ के आप भिक्षा मांगने जाते हो, ये दिखाने के लिए कि बस प्रभु ही मेरी रक्षा करेंगे और प्रभु ही मेरे सब कुछ है। अहंकार के लिए बहुत बड़ी ठेस है ये। इतना आसान है क्या? किताब वितरण करना इतना आसान नहीं है। रास्ते पे जाके वो नम्र भाव से, कोई आपकी तरफ देखेगा तक नहीं, हजारों लोग चल रहे हैं, आपको अनदेखा कर देगा। आपको लगेगा अरे मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में स्वेच्छा से वो नम्र भाव को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ये बहुत कठिन है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी स्तुति हो, हम चाहते हैं कि समाज में हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो। प्रभुपाद जी ने ये कभी नहीं सोचा। उस समय की बात है 1965-66 की। प्रभुपाद के न्यूयॉर्क 26 सेकेंड एवेन्यू में प्रभुपाद जी रोज शाम को या हफ्ते में 3 बार वो प्रवचन करते थे शाम के समय। और जब प्रवचन करते थे तो सब ऐसे ही सब घूमते फिरते लोग आके बैठ जाते थे। एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे थे
तो उस न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा म्यूजिकल बैंड था जिसका नाम था फग्स, FUGS। वो लोग ने प्रभुपाद स्वामी जी के बारे में या थोड़ा कीर्तन सुन लिया था, तो वो लोग सब आके प्रभुपाद जी के प्रवचन में बैठ गए। और वो लोग ऐसे लोग थे जो जगह जगह पे जाके सब ऐसे कॉन्सर्ट करते थे, बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट्स करते थे, और कॉन्सर्ट में वो ड्रग्स और क्या क्या नहीं करते थे, सब गलत व्यवहार करते थे। तो जब भक्त लोग ने देखा कि वो लोग आके बैठे हैं और ये लोग का तो बहुत बड़ा नाम है, प्रभुपाद जी अगर उनके विरुद्ध कुछ कह देंगे या प्रभुपाद जी उनके सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ कह देंगे तो ये लोग को कैसा लगेगा। तो ये लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी को ये नहीं कहना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति या व्यसन व्यभिचार ये सब बुरा है। सब डिवोटी सोच रहे थे कि प्रभुपाद को ये टॉपिक को टच ही नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद ने उस दिन धुलाई कर दी किस तरह इंद्रिय तृप्ति नरक का रास्ता है, और आदमी किस तरह से अपने स्तर से नीचे गिरता जाता है। इतना सारा प्रभुपाद ने कह दिया। डिवोटीज उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर दी, अभी ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे। ये जितने भी लोग आए थे बैठने, उन लोग ने जैसे ही सुना, वो लोग के तो पूरी जीवन शैली के पूरा खिलाफ था ये, तो वो लोग उठ के चले गए। तो डिवोटीज बड़े नाराज हो गए। और डिवोटीज ने जाके प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी आप जानते थे ये कौन बैठा था यहाँ पे, ओटी मोटी लहरी और वो सब ऑल बिग पीपल, बड़े बड़े लोग। प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही एक सिद्धांतिक वाक्य कह दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अमेरिका में यदि आया हूँ तो आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अमेरिका मेरे गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू प्लीज माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने भी कभी ये नहीं सोचा कौन मेरे प्रवचन की वाह वाह करेगा। उसी तरह प्रभु श्री राम ने भी नीति को अपनाया, लोकमत को नहीं अपनाया। लोकमत तो यही कह रहा था कि कई बुरी है, भरत ऐसा है वैसा है, आपको वापस आ जाना चाहिए। इतने सारे लोग कह रहे हैं, मेजॉरिटी कह रही है, कल उठ के आप कोई वोट नहीं देंगे यदि आप उनके नहीं सुनेंगे तो। प्रभु श्री राम ने सही नीति क्या है, नीति को अपनाया, लोकमत को नहीं अपनाया। तो यह फ्यू मिनट्स, तो ये सुंदर सी शिक्षा है। आगे तो बहुत सारी शिक्षा है, लेकिन एक दो में और कुछ कहना चाहूँगा कि कलयुग में ये बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। प्रभु श्री राम हमें ये सिखा रहे हैं कि संबंधों को कैसे बनाए रखना है, और हमारी ये बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है कि संबंध किस तरह बने रहेंगे यदि हम साधन सामग्री दूसरों को देंगे तो हमारा प्रेम बढ़ेगा, हमारे संबंध बढ़ेंगे। आजकल आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट में आता है कल करवा चौथ है, कल रक्षाबंधन है। यदि भाई अपनी बहन को एक हीरे की अंगूठी देता है तो उससे आपका प्रेम कितना बढ़ेगा। यदि फलाना ढिकना प्रेशर कुकर यदि आपने अपनी पत्नी को दिया तो आपकी पत्नी और आपके बीच का प्रेम कितना बढ़ेगा।
लेकिन रामायण इस बात को साबित करता है कि प्रेम केवल साधन सामग्री से नहीं बढ़ता या नहीं बनता। संबंध को बनाए रखना है और प्रेम को बढ़ाना है, तो ये 4 चीज के ऊपर गौर दीजिए। कौन कह रहा है? रामायण। प्रभु श्री राम भरत हमें सिखला रहे हैं। सबसे पहला सेवा। सेवा भाव होगा तो अपने आप संबंध बिगड़ेंगे तो नहीं, एटलीस्ट बने रहेंगे, बिगड़ेंगे तो नहीं। जब निस्वार्थ सेवा भाव होती है ना, रामायण के हर एक पात्र में हम देखते हैं कि उनको दूसरों के लिए ही अपना जीवन जीना है। तो संबंध को बनाए रखना है तो पहला सेवा, दूसरा समझ, आपस में अंडरस्टैंडिंग, समझ बहुत जरूरी है। अरे जब व्यक्ति शादी करके घर आता है तो दहेज में भी बहुत कुछ लेके आता है, साधन सामग्री। क्या दहेज में बहुत सारी चीज आती है तो संबंध अपने आप बन जाते हैं? नहीं। कौन ज्योतिषी कह सकता है कि यदि न लड़के ने लड़की को हीरे की अंगूठी दी है तो उसका तलाक नहीं होगा? क्या साधन जिम्मेदार है हमारे संबंध को बनाए रखने में? हाँ, हमें आदान प्रदान करना चाहिए, तोहफा देना चाहिए, गिफ्ट्स लेने चाहिए, लेकिन वही कारण नहीं है। सेवा भाव, समझ, ये सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले थे लेकिन समय नहीं है, लेकिन मैं खाली टच कर रहा हूं। सेवा, समझ, तीसरा सम्मान। जब तक आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे ना, तब तक आप अपेक्षा भी मत करना। यदि पति पत्नी के संबंध में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान भाव नहीं है तो वो संबंध ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। पहला क्या था? सेवा, दूसरी, तीसरा सम्मान, और चौथा समर्पण। संबंध को बनाए रखने के लिए समर्पण की भावना अत्यधिक आवश्यक है। और यहाँ पे रामायण में कहने के लिए समय कम पड़ जाएगा, लेकिन एक एक चरित्र को यदि हम खुलासा करेंगे, यदि हम एक एक चरित्र का एक एक चैप्टर खोलेंगे तो समर्पण की भावना उभर के आती है। पति पत्नी का संबंध जो प्रभु श्री राम और सीता के बीच में था, समय नहीं है उतना, लेकिन मुझे एक्चुअली वो वृत्तांत आपको बताना था जब प्रभु श्री राम सीता के पास जाकर सीता को कहते हैं कि मुझे अभी वनवास जाना है। तब सीता की क्या प्रतिक्रिया थी? वो प्रतिक्रिया सुनते ही एक आदर्श पति पत्नी का संबंध क्या होना चाहिए बहुत सुंदर उभर के आता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि साधन सामग्री से ही प्रेम या संबंध बने रहेंगे, ये गलत धारणा है। एक पति पत्नी फिल्म देखने गए थिएटर में। फिल्म देखने के बाद जैसे ही बाहर निकले, पत्नी ने कहा पति से, अरे देखा उस शाहरुख खान को, कितना प्रेम करता था वो काजोल से, पैसे भी नहीं थे लेकिन हीरे की अंगूठी लाके दे दी, और एक तुम हो कि हीरे की अंगूठी तो नहीं, प्रेम तो किया करो। वो पति कुछ कम नहीं था, IIT से पढ़ा लिखा था।
आईआईटी से पढ़ा लिखा था, दिमाग भी जोरों का चलता है। रैम रैम बोलते हैं ना, बहुत फास्ट, कितना कितना जीबी का था मालूम नहीं। लेकिन उसने कहा कि ऐसी बात है क्या, अभी बताता हूँ प्रेम क्या होता है। वो तुमने जो देखा ना, वो शाहरुख खान और काजोल के बीच का प्रेम, अरे 30 करोड़ मिले थे उसको प्रेम करने के लिए। कोई देगा क्या मुझे 30 करोड़? पहली बात। दूसरी बात, वो प्रेम केवल 3 घंटे के लिए करना था उसको उसके साथ। मुझे तो जीवन भर करना है प्रेम। और सबसे बड़ी बात, तीसरी बात, वो काजोल उसकी पत्नी थी नहीं, इसलिए उस बहुत आसान था प्रेम करना। तो आज के जीवन में हम दूसरों को देखते हैं, अरे बहुत खुश है, क्यों? अरे वर्षगांठ पे उसने उसको ये दिया। एक पत्नी ने कहा पति से, कल तुम्हारी उद्या तुमचा वाढदिवस आहे, मैं आपको गिफ्ट दूंगी। पति ने कहा, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, मुझे बस थोड़ा इज्जत दे दो और थोड़ा तमीज से बात किया करो। जैसे ही पत्नी ने सुना, नहीं मैं तुम्हें गिफ्ट ही दूंगी, प्रभु श्री राम ने एक प्रकार से देखने जाए तो सीता मैया को 14 वर्ष में क्या दिया, लेकिन उनके प्रेम में रंच मात्र भी कमी नहीं। सीता मैया तो संतुष्ट थी केवल वलकल पहन के 14 वर्ष निकालने के लिए। लेकिन यदि आप और मैं संतुष्ट हो जाए तो मार्केट आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए आप और मुझे रामायण से दूर हटाया जा रहा है। टेलीविजन के माध्यम से हमारे घर में एक प्रकार से जहर पहुंचाया जा रहा है कि आपके पास यदि ये नहीं है तो आप जीवन में सुखी रह ही नहीं सकते। आपको इतना असंतुष्ट, आपके अंदर इतनी असंतुष्टि पैदा की जा रही है कि आपको लगेगा कि अरे उसके पास उतना है, मेरे पास नहीं है, मतलब मेरा जीवन ही बर्बाद, मेरा जीवन ही खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में यदि आप कोई सीरियल को देखने जाएंगे, कोई मूवी को देखने जाएंगे, 40 मिनट की सीरियल होगी, 40 मिनट की सीरियल में आप क्या देखते हैं? 40 मिनट की सीरियल में अधिकतर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति कितना द्वेष है, कितनी घृणा है, खुद की सत्ता, खुद की संपत्ति को बचाए रखने के लिए वो व्यक्ति कौन सी हद को पार कर सकता है, या फिर खुले आम हमारी संस्कृति को बदनाम किया जाता है। खुले आम भारतीय संस्कृति के परिवार में ऐसे ऐसे दृश्य बताए जाते हैं कि एक ही परिवार में पति के जीवन में एक स्त्री के नहीं अनेकों स्त्री के साथ संबंध है। क्या है भारत की संस्कृति रही है? नहीं। अरे ये तो पाश्चात्य लोग के
घर घर की कहानी है। लेकिन जब आप और मेरे घर पे पहुंचती है तो भारतीय संस्कृति के नाम पे पहुंचती है। हमारी संस्कृति का धरोहर क्या है? रामायण है, जहां पे एक स्त्री को बचाने के लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ दी। महाभारत क्या है? एक स्त्री के प्रति जो अपमान हुआ, उसके कारण तो पूरा कुरुवंश का नाश हो गया। तो हमें विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? आज के उस बड़े बड़े हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज के ऊपर? 3 हीरो आकर एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं कि ये पान मसाला अच्छा है। कितना असर पड़ता है छोटे बच्चे, छोटे क्या बड़ों के ऊपर भी। अरे उन्होंने बोला है मतलब अच्छा ही होगा। लेकिन वो लोग ने ये बताया कि ये पान मसाले के क्या हानिकारक असर आपके शरीर के ऊपर हो सकते हैं। तो ये आपको और मुझको समझना है। एक कहानी कह के मैं विराम दूंगा। एक बहन अपने छोटे से भाई को लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। बच्चे को हाथ में सामान था, तो बच्चे को पीछे एक गठिया में बांध दिया, कपड़े में बांधकर ऊपर चढ़ रही थी। पहाड़ चढ़ना था, चढ़ते चढ़ते हाथ में सामान भी था, पीछे बच्चा भी था, भाई भी था, छोटा भाई। थक गई, बैठ गई, सांस फूलने लगा। थोड़ी देर रुकी, वापस आगे चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वापस सांस फूल गया, वापस रुकी, आगे चढ़ने लगी। उसी समय ऊपर से कुछ पाश्चात्य देश के लोग वहाँ से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये लड़की इतनी हाफ रही है, सांसें फूल रही है। उसने कहा, वो जो सामने वाला बंदा था उसने कहा उस लड़की को, इसको जो बोझा उठा के रखा है उसको नीचे क्यों नहीं रख देती? वो लड़की ने कहा, अरे ये वजन थोड़ी ना है, ये तो मेरा भाई है। कुछ समय के बाद उसी रास्ते से एक बहुत बड़े शेठ जी अशरफियों की गठड़ी को लेके पीछे बांधकर वही पहाड़ को चढ़ रहे थे। पहाड़ चढ़ते चढ़ते शेठ जी थे, बड़ा शरीर था, थक गए, सांस फूलने लगी, बैठ गए, फिर चलना चालू किया, फिर सांस फूलने लगी। अभी तो सोच में पड़ गए कि यार ये बहुत भारी हो रहा है, बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन छोड़ थोड़ी सकते। क्या था? अशरफिया थी, कॉइन्स। सामने से वही बंदे गुजरे जो उस लड़की के सामने से गुजरे थे। नीचे उतरते उतरते सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी सांस फूल रही है, इसको छोड़ क्यों नहीं देते? सेठ जी ने कहा, इसे कैसे छोड़ दूं? ये मेरा भाई थोड़ी है, ये तो मेरे पैसे है। समझ गए? सोचिए दोनों के मानसिकता में कितना अंतर है। कि आज व्यक्ति अपने भाई, सगे संबंधी को सत्ता, पैसे के लिए, रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है। हमें निर्णय करना है कि हमें वो बहन बनना है या वो सेठ जी बनना है। और प्रभु श्री राम यदि चाहते तो अकेले ही काफी थे पूरी अयोध्या को अपने वश में करने के लिए, लेकिन उन्होंने संबंधों को प्राधान्यता दी। अरे वो तो
राम ही थे जो केवल केवल क्या, जंगल में जाकर भी वो बंदरों को अपना भाई बना लिया, सुग्रीव को अपना भाई बना लिया उन्होंने। और हनुमान जी को तो कौन सी पदवी दे दी? हनुमान चालीसा में आता है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि तुम लक्ष्मण तुल्य नहीं हो, तुम तो भरत तुल्य हो। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। प्रभु श्री राम जिन्होंने जंगल में जाके एक अनजाने व्यक्ति के साथ ऐसी मित्रता बना ली कि उस मित्र को अपना भाई बना लिया। और यहां पे लंका में रावण है जो अपने भाई, सगे भाई को लात मारकर बाहर निकाल देता है। और आज ऐसे कई लोग हैं जो रावण का समर्थन करते हैं लेकिन प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलते हैं। कैसी बुद्धि मारी गई है देखिए आप। सच्चाई को देखने के, समझने के बावजूद भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये रामायण हमारी संस्कृति क्या है, ये हमें सिखलाता है। और विकृति क्या है, वो लंका और लंका में निवास कर रहे रावण और उनके सहचर के माध्यम से हमें सिखला रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है, और कभी दूसरी बार अवसर मिला तो अवश्य प्रयास करेंगे। आप सबका मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके प्रभु श्री राम की सुंदर राम कथा कहने का ये अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।